Hello students, today we are going to explain vision and values of Indian Constitution. Means our Constitution shows some features, and what are these features we are going to read in this topic. The Constitution of a country reflects its distinctive features, culture and ethos. हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके फीचर्स को, इसके कल्चर को और कल्चर की स्पिरिट को शो करता है कि हाउ द पीपल लिव इन दिस कंट्री, व्हाट इज द कल्चर ऑफ दैट कंट्री एंड द फीचर्स ऑफ दिस कंट्री. All these things are shown in the Constitution. The Constitution of France and US are the product of political revolution. फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था अगेंस्ट द किंग एंड द नोबल पर्सन्स और द चर्च ऑफ फ्रांस. At that time there was a dictatorship type rule in the France. Okay, common person did not have any rights, so they just revolted against the kings, or they made their constitution after the revolution. So the constitution of France was the product of political revolution. Okay, ये political revolution के बाद ही एस्टैब्लिश किया गया, उसके बाद ही फॉर्म किया गया. ओके, बट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन एज इट इज द आउटकम ऑफ ग्रेजुएशन. जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है. वी ऑल नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज ऑल्सो रिटन, बट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन एज इट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन. ये एक रिजल्ट है जो उन्होंने धीरे धीरे डेवलपमेंट्स की, जो उनके कल्चर में चेंजेस आए. इट इज द रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस एंड दीज इवोल्यूशंस. अनलाइक द यूएसए एंड यूके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ सीरियस डेलिब्रेशंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. USA's Constitution was the result of political revolutions and UK's Constitution was the result of gradual evolution. But in India, the Constitution was made by a Constituent Assembly. Okay, and the members of this assembly were the representative of Indian people. Clear? जो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कैसे बना? वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो हमारे इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि इंडियंस ने उन्हें इलेक्ट करके वहां पर भेजा था टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ सीरियस डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन मीन्स the serious talk or discussion. Okay, our country is a vast country. हमें सबको पता है कि people from different region, religion, caste are there. So we need a constitution that fulfill the requirement of all these people. Okay, हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, सबको हेल्प कर सके, सबकी डेवलपमेंट में हेल्प कर सके. So the Constituent Assembly discussed on too many serious issues and then they formed the our constitution. Okay, most of the members of the Constituent Assembly represented Hindus, Muslims, Sikh, Anglo-Indians, Christians, Harijans, Parsis, etc. It means the member of the Constituent Assembly belong to every religion and every caste. Okay, there is no majority. कोई भी ऐसा majority persons नहीं थे कि सिर्फ हिंदूज ही थे या सिर्फ मुस्लिम्स ही थे. The members were belong to
each and every region and religion and caste. Okay, they were different caste, different religion or different region. Clear? The assembly included eminent personalities. इस असेंबली में बहुत सारे फेमस पर्सन्स भी थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, के एम मुंशी, जे बी कृपलानी, सी राजगोपालचारी, सीतारामैया जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम गोपाला स्वामी अयंगर, etc. And there were 15 female members also. And they were Cheta Kriplani, Sarojini Naidu, Rajkumari, Amrita Kaur, etc. So these are the number of people, those were the representative of Indian citizens. जो यहाँ के इंडियन पर्सन्स थे, यहाँ के लोग थे, ये सब उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे. These are the pictures of the eminent leaders, and they added many ideals in our constitution. Okay, some ideals are included in the constitution of free India. बहुत से ideals means आदर्श, values add की गई हमारे constitution में, like commitment to democracy, that we all are committed to democracy. हम सब डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, इसके साथ कमिटमेंट रखेंगे कि डेमोक्रेसी के अलावा कोई और गवर्नमेंट हम फॉलो नहीं करेंगे. एंड गारंटी ऑफ जस्टिस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फॉर जस्टिस. ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि हर पर्सन को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा. ओके, इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल द पीपल, वेदर इट इज रिच और पुअर और हायर कास्ट और लोअर कास्ट, वट एवर दे वर और दे आर, तो उन्हें इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस प्रोवाइड करवा रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर सो वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट फीडिंग द starved, clothing the naked and ending the exploitation of the already deprived and depressed section of the society. Our constitution maker were very much concerned to the exploited persons. जो हमारे exploited communities थी, उनके लिए constitution makers बहुत ज़्यादा concerned थे, बहुत ज़्यादा उनके साथ feelings जुड़ी हुई थी. And they just promised to feed the starved. जो भूखे लोग हैं उन्हें खाना मिले. Clothing the naked, जिनके पास क्लोथ्स नहीं है उनको क्लोथ्स मिले. ओके, और जो एक्सप्लॉयटेड होते आ रहे हैं, जो डिप्रिव्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन को खत्म किया जाए. क्लियर? एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द preamble. We have discussed in 7th class what is preamble. Preamble is an introduction to our constitution. हमारे constitution में जो भी given है, जो भी written है, preamble में उसका एक reflection दिखता है, पता चलता है कि हमारा constitution उसके features क्या हैं और वो क्या हमें promise कर रहा है. Okay, the preamble was included in the beginning of the constitution. The preamble is an introduction to the constitution and is non-justicable. Means कि हम इसके लिए जस्टिस की डिमांड नहीं कर सकते. इट इज नॉन जस्टिकेबल. हम ये नहीं कह सकते कि प्रेम्बल में कुछ गलत लिखा है, कोई केस नहीं कर सकते हैं. ओके, इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलॉसफी, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज रिटन इन द preamble? In preamble there are the political philosophy and aims, objectives and purposes of constitution, that why we need the constitution, what the constitution provided to us, all these things are written in the preamble. And it is also called the soul of Indian constitution. और ये Indian constitution की soul भी कही जाती है. Underline this,
soul of the Indian Constitution, that is preamble. Okay. In preamble it is written, started with we the people of India, because the constitution is made by or formed by the Constituent Assembly, in which the members were the representative of citizens of India. Okay, क्योंकि ये हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया था, हमारी जगह पर रहकर हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे वो, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग। इंडिया को सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाते हैं, और यहाँ पर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी होगी, इस चीज का प्रॉमिस करते हैं। ओके, these things are written in our constitution. Our constitution is the mixture of so many constitutions. ठीक है, our constitution frameworkers or makers just took the good qualities of other constitution and formed their own. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, सब कॉन्स्टिट्यूशंस की अच्छी बातों को ग्रास्प कर लिया, ले लिया, और उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया। ओके, जैसे हम कहते हैं कि सबके गुड क्वालिटीज को हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, तो सेम हैपेंड विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स adopted the good quality of other constitutions. Okay, just like they took the good qualities of England, USA, Canada, Ireland countries constitution. Okay, and they just changed them, उनमें changes किए गए according to our requirement. ये नहीं कि as it is उठा लिया उसको, no, they made changes in that, अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, यहाँ के लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इन फीचर्स में, इन गुड क्वालिटीज में चेंजेस किए, सो दैट दीज फीचर्स फुलफिल आर डिमांड्स, ये फीचर्स हमारे डिमांड को फुलफिल कर सकें। ओके, देयर आर द क्वालिटीज दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रियम्बल का आइडिया लिया, कैबिनेट सिस्टम लिया। ओके, एंड आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी पोस्ट भी हमने ब्रिटिशर्स के सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में क्वीन की जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग ही, उससे ही इन्फ्लुएंस होकर अपने यहाँ पर भी हेड ऑफ द स्टेट हमने अपॉइंट किया। ओके, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकन बाय द British Constitution, taken from the British Constitution. Okay, and bicameral legislature, यानी कि दो legislature होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, this is also taken from the Britishers, and Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. This is also the feature of British system. Okay, collective responsibility of Council of Ministers, that all the ministers sink together and dawn together, जो डूबेंगे भी इकट्ठा और तैरेंगे भी इकट्ठा। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे कहाँ से ली है हमने, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से। लोकसभा स्पीकर की पोस्ट भी यूके से ली गई है, एंड द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिविलेजेस दी गई हैं that are also taken from the British Constitution. Okay, and what we have taken from American Constitution, American Constitution is a written constitution. It was the first constitution that is in written form. Okay, so we have taken the thing कि हम भी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने लॉज हैं, वो रिटन फॉर्म में रखेंगे ताकि आगे जाकर कोई कन्फ्लिक्ट्स ना हो। Okay, so they take the written constitution idea from the American Constitution, जो फेडरल सिस्टम है कि हमारी कंट्री स्टेट्स और यूनियन में डिवाइड की गई है। दिस सिस्टम वाज आल्सो टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन।
हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। हम अपने हेड को प्रेसिडेंट कॉल करेंगे। ये भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रोविजन फॉर अ सुप्रीम कोर्ट, कि सबसे जो हाईएस्ट कोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट होगी और वो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच के कन्फ्लिक्ट्स को भी सॉल्व करेगी। तो ये सब चीजें हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। प्रोविंसेस आर नोन एज स्टेट, एज आई हैव डिस्कस्ड बिफोर कि यूनियन और स्टेट की जो डिवीजन है वो हमने अमेरिका से ली है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोविंसेस हैं यानी कि जो छोटे छोटे एरियाज हैं उनको स्टेट कॉल करना भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स लाइक द यूएस सीनेट। यूएस में एक सेनेट है जिसमें जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर वर्क करते हैं। तो सेम वी हैव टेकन द आइडिया फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म्ड राज्यसभा हेयर। और राज्यसभा में कौन होते हैं मेंबर? हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ही इलेक्ट होकर कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में। ओके,